Yes. Now we see section formula, theorem 5. उसको हेडिंग देना है सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन. Let A bar and B bar be any 2 points in the space and R bar be on the line segment AB, dividing it internally in the ratio m:n. Yes, it's important. Dividing it internally in the ratio m:n. Internally. यानी R lies between A and B confirm हो गया. Then show that R bar equal to NB bar MB bar plus NA bar upon M plus N. फॉर्मूला याद रखो सभी लोग. R bar equal to MB bar plus NA bar upon M plus N. R bar equal to MB bar plus NA bar upon M plus N. प्रूफ देखते हैं. As R is a point on the line segment AB, therefore either it will be ARB or RAB. Okay, R lies between A and B, so ARB or BRA. So we take ARB and AR bar and RB bar are in the same direction क्योंकि R lies between A and B. Since R lies between A and B, AR bar will be equal to RB bar. I repeat, AR bar will be equal to RB bar. यानी AR bar and RB bar are in the same direction. इक्वल नहीं रहेंगे, they are in the same direction. अब क्या दिया उन्होंने? R divides segment AB internally. यहां लिखता हूं मैं. हाँ, R divides segment AB internally. What does it mean? Therefore, length AR upon RB is equal to M upon N. करेक्ट है. AR upon RB is equal to M upon N. Very very important. बस ये थियरम याद करना आपको 3 मार्क के लिए. तो इतना याद रखो, AR upon RB is equal to M upon N. AR upon RB is equal to M upon N. बस ये याद हो गया आपको तो प्रॉब्लम सॉल्व. पूरा थियरम बाद में मन से करना, अपने मन से करेंगे अपन. हाँ, length AR upon RB is equal to M upon N. Why? Because R divides segment AB internally in the ratio M:n. Therefore, AR upon RB is equal to M upon N. I repeat, AR upon RB is equal to M upon N. अब ये N को इधर लेके आओ. Therefore, N into AR is equal to M into RB. ये आ गया. N into AR is equal to M into RB. ये N इधर चला गया. N into AR is equal to M into RB. Now, M into RB bar. M and N are real numbers and AR bar and RB bar in the same direction. Therefore, M into RB bar and N into AR bar have same direction and magnitude. Magnitude क्यों से हो गया? AR bar and RB bar may not be of equal magnitude, but when you multiply it by N into AR bar, N into AR bar and N into RB bar, they will be of the same magnitude, definitely. So, M into RB bar and N into AR bar have same direction and magnitude. Therefore, M into RB bar is equal to N into AR bar by equality of vectors, because these two vectors are equal in magnitude and they are in the same direction. So, M into RB bar is equal to N into AR bar. अब RB bar यानी OB bar minus OR bar, देखो ये M RB bar चाहिए तो it is equal to OB bar minus OR bar. M into OB bar minus OR bar is equal to N into OR bar minus OA bar. अब OB bar यानी कौन है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B with reference to origin O. So OB bar will be only B bar. So यहां से भी लिख सकते अपन एक स्टेप डायरेक्टली. M into B bar minus R bar. Capital B bar minus small r bar, small b bar minus small r bar is equal to N into R bar minus A bar. N into R bar minus A bar. Now expand. MB bar minus MR bar is equal to NR bar minus NA bar. अभी क्या करो, ये NA बार को इधर लेके आओ और MR बार को उधर लेके जाओ. तो MB बार प्लस NA बार इज इक्वल टू MR बार प्लस NR बार. इसमें से कॉमन कौन निकलता है? R बार.
So MB bar plus NA bar is equal to M plus N into R bar, and therefore R bar equal to MB bar plus NA bar upon M plus N. This is a classic section formula for internal division. इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं. This is section formula in vectors for ID. What is the meaning of ID? Internal division. Exactly. Section formula for ID in internal division. Up. एक थोड़ा कंफ्यूजिंग है. R बार इक्वल टू MB बार प्लस NA बार अपॉन M प्लस N. तो कुछ साल के बाद, 7-8 साल के बाद किसने पूछा व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला, तो आदमी बोलता है NA बार प्लस NB बार अपॉन M प्लस N. इंटरव्यू लेने वाला पूछता है आर यू श्योर, आर यू करेक्ट? हाँ सर ऐसा है कुछ तो भी था ना, MA बार प्लस NB बार अपॉन M प्लस N. सिलेक्ट नहीं होंगे आप, उसके लिए कुछ स्टोरी होना जरूरी है याद रखने के लिए. अब इंटरव्यू में 7-8 साल के बाद पूछा व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन. जिन्होंने रट्टा लगाया हुआ है, मगअप किया हुआ है, भूल गए, NB बार की जगह NA बार लिख के आ गए, हो गया, सिलेक्ट नहीं होंगे. लेकिन ऐसे एक लड़का सिलेक्ट हो गया, और वो भी कहाँ पे, डिफेंस मिनिस्ट्री में, डिफेंस एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर. सिलेक्ट हो गया. अपना स्टूडेंट भी गया था लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हुआ. जो रीजन होगा वो कैसा सिलेक्ट हुआ पता नहीं. फिर सडनली पाकिस्तान डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट इंडिया. चालू उनके टेररिस्ट एक्टिविटीज अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. मोदी साहब ने ऑर्डर दिया, प्राइम मिनिस्टर अपने मोदी साहब, कि जाओ एक काम करो, जितने हैं मिसाइल से उनको असेंबली उड़ा दो पूरी, एक भी बचना नहीं चाहिए, असेंबली पूरी उड़ा दो उनकी. तो कैसा फाइल पे क्या होता है, करप्शन हर जगह है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है. फाइल की चीज़ें बाहर आ जाती है, तो सब न्यूज़ में देखते भी अपन लोग. तो फाइल में उसने सोचा, मोदी जी ने कहा अच्छा दिमाग लगा के कि कुछ कोडवर्ड में बताओ क्या करने वाले, कैसे अटैक करने वाले, मिसाइल अटैक. तो जो लड़का था ज्वाइन किया हुआ, उसने बोला R बार इक्वल टू MA बार प्लस NB बार अपॉन M प्लस N. ये फॉर्मूला लगाया उसने, फाइल पे लिख दिया. बस उसके हिसाब से उन्होंने अटैक चालू किया. सब लोग बॉर्डर पे बैठे हुए, मोदी जी भी चेयर डाल के बैठे हुए, पाकिस्तान की असेंबली पूरी जोर शोर से, उसमें सारे उनका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान द ग्रेट प्लेयर और सारे ISI वाले भी बैठे थे मिलिट्री वालों के साथ. बस अटैक करके उड़ाना था. राजस्थान बॉर्डर से मिसाइल गया ना, एज पर प्रोग्राम फार्मूला R बार इक्वल टू MA बार हो गया. ये सब मोदी जी सब सारे अपने लोग बैठे थे. वो मिसाइल गया M, राजस्थान बॉर्डर तक गया, उसके उल्टा वापस आया. मिसाइल इधर नहीं गया, बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान नहीं गया, उल्टा वापस आया. ऐसा उड़ा यहाँ से मिसाइल, ऐसा होकर वापस आया और अपनी इंडिया में आने लग गया. मोदी जी बोले क्या करते हो, क्या करते हो, भागो भागो. बोले इधर ही आ रहा. लड़के को पूछा क्या हो, क्या करा. बोले सर पता नहीं, प्रोग्राम तो बराबर बनाया था, MA बार तो लिखा था. अरे बैताड़ा बने, MA बार मजे तो M से लेके राजस्थान बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, उसने वापस आया और अपनी असेंबली दिल्ली की पूरी उड़ा डाली, दंदनाते हुए, दार दार दार. अच्छा हुआ वहाँ कोई बैठा नहीं था उस दिन, सारे बॉर्डर पे थे, बच गए. खूब गाली दिया मोदी साहब ने. तो लड़का भी थोड़ा होशियार था, सिलेक्ट हुआ था. बोले सर कोई बात नहीं मोदी साहब, कोई जिंदा ये बात नहीं, अपन ने अपनी असेंबली उड़ाई. आप एक काम करो, इमरान खान जी को फ़ोन करके बताओ कि हमने मिसाइल से हमारी असेंबली उड़ा डाली है, तुम भी तुम्हारी असेंबली उड़ा डालो एज पर ऑर्डर, एज पर दिस फॉर्मूला. मोदी जी ने फोन किया, इमरान भाई हमने हमारी असेंबली मिसाइल से उड़ा डाली, आप भी अपनी उस मिसाइल से उड़ा डालो. ऐसे ही जोर जोर से हंसे. इमरान खान कैसी बातें करते हो. बोले मोदी जी क्या करते हो आप, आपको बुरा लगना चाहिए कि ऐसे कैसे अटैक कर दिया आपने, अपने ऊपर अटैक कर दिया और एक्सपेक्ट करो कि हम भी अटैक करेंगे, हम इतने बुद्धू नहीं है. बोले मोदी जी को बहुत गुस्सा आया. किसने इस लड़के को सिलेक्ट किया. बोले उसको बोला कैसा सिलेक्ट किया, क्यों सिलेक्ट किया, इंक्वायरी करो. इंक्वायरी में पता चला जिसने उसको सिलेक्ट किया वो उसका भतीजा था, इसलिए सिलेक्ट हो गया.
और अपना स्टूडेंट, टैलेंटेड स्टूडेंट, टॉपर, उसको सिलेक्ट नहीं किया। फिर मोदी जी ने कहा दोबारा इंटरव्यू लो, एक अच्छा लॉजिकल ब्रेन वाला लड़का सिलेक्ट करो, ऐसे गलती होना नहीं चाहिए, जिसके फॉर्मूले वगैरह कंसेप्ट एकदम क्लियर हो। फिर अपना स्टूडेंट गया, उसको दिखाया क्या प्रोग्रामिंग में क्या बोलती थी, उसने देखा अरे आर बार इक्वल एम ए बार, ये तो गलत है मोदी जी, कैसे उसने लिख दिया पता नहीं। बोले मैथ्स में अपने आप को बहुत ग्रेट समझता था, लिख दिया बोले एम ए बार। नहीं सर ऐसा नहीं होता, वो मिसाइल अटैक रहता है, बोले वो बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है, फॉर्मूला ये रॉन्ग है। मैं आपको नया फॉर्मूला बताता हूँ मोदी जी, फॉर्मूला याद रखने का तरीका। ये राजस्थान बॉर्डर, ये अपना मिसाइल, एम फॉर मिसाइल, ये गया बोले राजस्थान बॉर्डर क्रॉस किया, डन 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 डन, और बी बार पे अटैक किया। ठीक है, ये ऐसा फॉर्मूला बनता, बोले एम इंटू बी बार, राजस्थान बॉर्डर क्रॉस करेंगे। उसके बाद वो चुप बैठने वाले नहीं है, वो भी पाकिस्तान वाले अपने असेंबली में अटैक करेंगे विथ नाग मिसाइल। ये देखो वो अटैक करेंगे, बोले ये एन ए बार डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, ये फॉर्मूला होता है फिर आर बार इक्वल टू, इस तरह से फॉर्मूला होता है, राजस्थान बॉर्डर से क्रॉस होना चाहिए। ये तो इसने क्या किया था पता है, ये ए, ये बी, ये आर, इसने क्या किया एम एन, इधर से इधर, इधर से इधर, बॉर्डर कहाँ क्रॉस हुई, ऐसे क्रॉस होना चाहिए ना बॉर्डर, तब जाके उनके इसमें पाकिस्तान में अटैक होगा। करेक्ट है। अपना ये प्रेजेंटेशन स्टूडेंट ने दिया, मोदी जी खुश हो गए, ये है बोले टैलेंटेड लड़का, इसको सिलेक्ट करो। इसको सिलेक्ट किया, दोबारा प्रोग्राम बनाया अभी, अब प्रोग्राम में चेंज आ गया, देखो फॉर्मूले में आर बार इक्वल टू, उसने बताया एम बी बार, मोदी जी को भी समझ में आ गया अभी, हालांकि मोदी जी को साइंस का उतना नॉलेज नहीं, लेकिन उनको भी समझ गया कि अरे ऐसा क्रॉस करना पड़ता बॉर्डर, एम बी बार। फिर मोदी जी खुद ही बोले अब मैं बताता हूँ, लिखो एन ए बार, लिखा सबने, अरे वाह, डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। इस बार जो अटैक हुआ, इसके बाद मोदी जी खुश हो गए, अपने स्टूडेंट को भारत रत्न डायरेक्ट दे दिया। क्यों, क्या हुआ बताता हूँ। जैसे ये प्रोग्राम फाइल हुआ, मिसाइल भी प्रोग्राम बन गया, अपनी यहाँ से मिसाइल निकला, राजस्थान बॉर्डर क्रॉस किया, पाकिस्तान की असेंबली फुल फॉर्म में चल रही थी, और दन्नाते मिसाइल धार से असेंबली पे जा टकराया। 100 मुल्ला जी, 50 मंत्री गायब पाकिस्तान के, 150 टॉप क्वालिटी लीडर्स पाकिस्तान के गायब हुए। जैसे तैसे इमरान खान बच गए, प्लेयर थे जल्दी से भाग गए, बच गए। फिर इमरान खान ने ऑर्डर किया अपन भी अटैक करेंगे। ठीक है, मोदी जी असेंबली बुला के मस्त भाषण दे रहे थे, और अपने स्टूडेंट को ये कर रहे थे कि भारत रत्न दिया जाए, इसके बारे में डिस्कशन चल रहा था। अपने स्टूडेंट ने बोला सर यहाँ मत बैठो, नागपुर में आ जाओ, दिल्ली में मत बैठो, खतरा है। मोदी जी बोले क्यों, क्या खतरा, वो तो पूरे टपक गए। नहीं सर, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिंदा है, वो अपने ऊपर अटैक करेंगे। पट से सबको लेके, अपना स्टूडेंट सभी को लेके नागपुर में आया, और दिल्ली के अपने असेंबली के ऊपर जो था उसके ऊपर उन्होंने कैमरे लगा के रखे। क्या होता है देखो, बस वही हुआ। इमीडिएटली जैसे ही उनके ऊपर अटैक हुआ, 1 घंटे के अंदर नाग मिसाइल आया, दंदनाते आया, और जहाँ थोड़ी देर पहले ये लोग बैठे थे वहाँ पूरा मिसाइल से पूरा तहस नहस कर डाला उन्होंने, असेंबली पूरी, जबरदस्त बिल्डिंग पूरी, पावरफुल मिसाइल। ठीक है, इमरान खान ने मोदी जी को फोन किया, मोदी जी कहाँ हो, स्वर्ग में कि नरक में। अबे ना मैं स्वर्ग में हूँ ना नरक में हूँ, मैं नागपुर में बैठा हूँ। इमरान हिम्मत होगी तो आजा, नहीं तो मैं आता हूँ तेरे से मिलने के लिए। ऐसे कैसे हुआ मोदी जी, हमको पता था तू अटैक करने वाला, इसलिए हम दिल्ली से नागपुर में आके बैठे थे। ये होता है इंटेलिजेंटली फॉर्मूला अप्लाई करने का फायदा। करेक्ट है। इफ यू अटैक ऑन द पाकिस्तान असेंबली, दे आर बाउंड टू अटैक ऑन आवर असेंबली न्यू दिल्ली, सो वी हैव टू टेक केयर। करेक्ट है। और यहां से फॉर्मूला बन गया आर बार इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन। अब 10 साल के बाद भी आपको इंटरव्यू पूछा है, फॉर्मूला स्टोरी के साथ याद आएगा। राजस्थान बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में रहना चाहिए मिसाइल अपना, फिर वो लोग भी अपने ऊपर अटैक करेंगे एन ए बार। इसीलिए आर बार इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन इज द फॉर्मूला। अब ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर यानी आर बार। लेकिन अपने को अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं
ए के कोऑर्डिनेट्स है a1 a2 a3, बी के कोऑर्डिनेट्स है b1 b2 b3 और आर के कोऑर्डिनेट्स है r1 r2 r3. दिस डिवाइड सेगमेंट AB in the ratio m:n. Then r1 bar will be mb1 bar plus ma1 bar upon m plus n upon m plus n, where I values from 1 to 3. अगर I के वैल्यू 1 दिया तो ये आएगा, फिर R के वैल्यू 2 डालेंगे, फिर R के वैल्यू 3 डालेंगे, तो फॉर्मूला बन गया RI बार इज इक्वल टू MBI बार प्लस NAI बार अपॉन M प्लस N I वैल्यूज फ्रॉम 1 to 3. इतना इसमें डिटेल में फंसने की जरूरत नहीं है. आई विल बाद में आपको टेक्निक बताऊंगा हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट R अगर इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो. राइट, उसके साथ भी एक स्टोरी है, वो कल अपन डिस्कस करेंगे उसकी स्टोरी. हाँ, आई होप फॉर्मूला इज क्लियर. तो अभी आपको याद क्या रखना है थ्योरम में, पूरा ये ड्राइंग निकालना है R लाइज बिटवीन A एंड B, और उसके बाद आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है कि AR अपॉन RB. आई विल टेल यू द टेक्निक नाउ. लेंथ AR अपॉन लेंथ RB इज इक्वल टू M अपॉन N. Therefore n into length AR or n into AR is equal to m into RB. बस I am talking about बोर्ड एग्जाम की तैयारी. n into AR is equal to m into RB. उसके यहाँ एक बार दे दो, यहाँ एक बार दे दो. अब पूरा थ्योरम अपने मन से अपन कैसे कर सकते हैं, देखो हो गया, यहाँ तक आ गए. अब थ्योरम पूरा मन से कैसा आएगा. What is AR bar? So m in bracket R bar minus A bar is equal to m in bracket. What is RB bar? B bar. Or a genius. B bar minus R bar. So NR bar minus NA bar is equal to MB bar minus MR bar. MB bar को NA bar उधर लेके जाओ. So MB bar plus NA bar is equal to MR bar plus NR bar. R बार कॉमन निकालो. सो एम बी बार प्लस एन ए बार इज इक्वल टू m प्लस n इंटू आर बार, एंड देयरफॉर आर बार इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन m प्लस n. फॉर्मूला तैयार हो गया. सो सिंपल. क्या याद रखना है अपने को? लेंथ AR अपॉन आर बी इज इक्वल टू m अपॉन n. n इंटू AR इज इक्वल टू m इंटू आर बी. अभी इक्वल क्यों हो गए? बिकॉज उनका मैग्नीट्यूड सेम है. देखो n इंटू AR इज इक्वल टू m इंटू आर बी, यानी ये दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो गया. और m इंटू AR RB बार एंड n इंटू RB AR बार आर इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि AR बार इज इन द सेम डायरेक्शन एज RB बार. सो डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसलिए दो वेक्टर्स कैसे हो गए? इक्वल. वही तो अपन लिख रहे हैं यहाँ पे, इक्वल कर दिया उनको. करेक्ट है. दिस इज सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन इन वेक्टर्स. नाउ सेकंड पे जाते हैं अपन. नोट टू मिड पॉइंट फॉर्मूला. इफ R bar is the midpoint of the line segment AB, then m is equal to n naturally. So m is to n we take it as 1:1. यहाँ देखो R is the midpoint of segment AB. So length AR is equal to length RB. यानी AR upon RB is equal to m is to n. n is equal to 1:1. And therefore अब ये small r bar देखो अभी, हाँ कैसा जाएगा अभी आप सिर्फ ऑब्जर्व करो. मिसाइल कैसा जाएगा अभी? ये स्मॉल आर बार इक्वल टू 1 से कहा जाएगा? बी बार. वेरी गुड. राजस्थान बॉर्डर क्रॉस करके, वेरी गुड. तो 1 से लेके बी बार. तो वो चुप बैठेंगे का पाकिस्तान वाले, वो क्या करेंगे? अटैक. तो 1 से लेके, और टेरिफिक, वेरी गुड. तो ये 1 से लेके ए बार तक आ गए. सो फॉर्मूला बन गया आर बार इक्वल टू 1b बार प्लस 1a बार अपॉन 1 प्लस 1. देखो कोई गलती होने का चांस ही नहीं, क्योंकि ड्राइंग्स निकाल रहे हैं अपन लोग अभी. देयरफॉर आर बार इक्वल टू a बार प्लस b बार अपॉन 2. दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला. सो आज के बाद ये r अगर AB का मिड पॉइंट है तो आर बार कितना रहेगा? a बार प्लस b बार डिवाइडेड बाय 2. आर बार इक्वल टू क्या रहेगा? a बार प्लस b बार डिवाइडेड बाय 2. नाउ थ्योरम 6, सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन. Let AA bar and BB bar be any two points in the space and RR bar be the third point on the line AB. Dividing segment AB externally in the ratio m is to n. Then
प्रूव दैट आर बार इक्वल टू एम बी बार ही आएगा, यहाँ भी एम बी बार ही था, यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या था माइनस एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन एम माइनस एन. Proof. As the point R divides the line segment AB externally, we have either A B R or R B A. But we will assume that it is A B and R. Now what is small a bar? When they write A bar, what does it mean? There is a point A having position vector small a bar with reference to some origin O. So this is point A with position vector a bar. Okay? So OA bar is small a bar, OB bar is small b bar and OR bar equal to small r bar. Clear हो गया mind में clear with reference to some origin O. Assume that A B R, therefore AR bar is to BR bar is equal to m is to n. They are in the ratio m is to n. अब m कहाँ से कहाँ तक है देखो, a से r तक और n कहाँ से r से b तक, इसलिए a r बार एंड b r बार. सी ध्यान रखो अभी r b बार नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि अपने को डायरेक्शन कैसी चाहिए, सेम चाहिए ना. तो a r बार और r b बार लेते तो क्या होता है डायरेक्शन अपोजिट होती थी, बट वी वांट इन द सेम डायरेक्शन. तो a r बार एंड b r बार, इसीलिए उन्होंने लिया उसको a r बार इज टू b r बार इज इक्वल टू m इज टू n. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उसके बाद सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है. नाउ लेंथ ए आर, आई रिपीट लेंथ ए आर डिवाइडेड बाय लेंथ बी आर इज इक्वल टू m अपॉन n. देयरफॉर n into length AR is equal to m into length BR, and n into AR bar and n into BR bar have same magnitude and direction. देखो करेक्ट है कि नहीं, AR bar और BR bar सेम डायरेक्शन है, AR bar and BR bar. अगर AR बार और RB बार कर दे तो क्या होता था, डायरेक्शन चेंज, माइनस लिखना पड़ता था, फिर यहाँ पे माइनस करना पड़ता था अपने को. सो AR अपॉन RB, AR अपॉन BR इज इक्वल टू m अपॉन n. देयरफॉर n into AR इज इक्वल टू m into BR. डायरेक्शन सेम देखना, AR और BR सेम लिया. देयरफॉर n into AR बार एंड m into BR बार हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. That means they are equal vectors. Therefore, n into AR bar is equal to m into BR bar. Rest everything is simple. Direction same रखो दोनों की. So n into AR bar यानी क्या? R bar minus A bar. n into R bar minus brackets open करो. n R bar minus n A bar is equal to m R bar minus m B bar. m B bar को इधर लेके आओ. एम बी बार माइनस एन ए बार इज इक्वल टू एम आर बार माइनस एन आर बार. इसमें से क्या कॉमन निकलता है, वेरी गुड. तो एम माइनस एन इंटू आर बार एंड देयरफॉर आर बार इक्वल टू एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन एम माइनस एन. दिस इज सेक्शन फॉर्मूला फॉर या इन वेक्टर्स, क्योंकि वेक्टर्स है ना ये, फॉर ईडी यानी क्या, एक्सटर्नल डिवीजन. सेक्शन फॉर्मूला इन वेक्टर्स फॉर एक्सटर्नल डिवीजन. एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन एम माइनस एन. इंटरनल डिवीजन क्या है, आर बार इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन. और एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन, बस यही डिफरेंस है. दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स. नाउ नोट, whenever the ratio in which point R divides the join of two points A and B is required, यानी ratio find करना है आपको. whenever the ratio in which R divides segment AB find करना, then never take it as m is to n. इसमें दो अननोन आते हैं. always take it as k is to 1 or even sometimes और lambda is to 1. कुछ किताब में lambda is to 1 लेते हैं, बट एक ही लो m is to n लेने का नहीं. कब, जब को क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है. टेक इट एज k is to 1. आई रिपीट, whenever the ratio in which the point R divides the join of two points A and B is required, it is convenient to take the ratio as
k:1 और λ:1. देन अभी क्या हुआ, R डिवाइड्स इन द रेशियो k:1, किसको, a बार और b बार. अगर ये इंटरनल डिवीजन है तो यहाँ आएगा R बार. रेशियो क्या लिया, k:1. तो एरोज लगेंगे तो k से कहाँ जाएगा, राजस्थान बॉर्डर क्रॉस करना, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना अपने को, तो k से b बार तक जाएगा, फिर वो अपने ऊपर अटैक करेंगे. 1 से कहाँ आएगा, a बार तक. तो फॉर्मूला क्या बनेगा, R बार इक्वल टू KB बार प्लस 1A बार अपॉन K प्लस 1. आई रिपीट, R बार इक्वल टू KB बार प्लस 1A बार अपॉन K प्लस 1 इफ द डिवीजन इज इंटरनल. और एक्सटर्नल डिवीजन में क्या फर्क पड़ता है, यहाँ बीच में प्लस की जगह क्या आता है, माइनस. वेरी गुड. तो R बार इक्वल टू KB बार माइनस A बार अपॉन K माइनस 1 इफ द डिवीजन इज एक्सटर्नल. तो आपको ये मिसाइल याद रखना है ड्राइंग. और R बार इज इक्वल टू KB बार प्लस 1A बार डिवाइडेड बाय K प्लस 1. आई रिपीट, R बार इक्वल टू KB बार प्लस 1A बार डिवाइडेड बाय K प्लस 1. R बार इक्वल टू KB बार प्लस 1A बार अपॉन K प्लस 1 इफ द डिवीजन इज इंटरनल. और एक्सटर्नल होगा तो बीच में क्या था, माइनस. नाउ नोट नंबर 2, इसको नाम देंगे सेंट्रॉइड फार्मूला. किताब में तो उन्होंने डायरेक्टली फार्मूला लिख दिया, बाद बीच में लिख दिया वेरीफाई, बट बोर्ड के एग्जाम में पूछते हैं 3 मार्क्स के लिए सेंट्रॉइड फार्मूला. तो विल कन्वर्ट इट इनटू अ थ्योरम लाइक दिस. थ्योरम 7 बोल दिया इसको मैंने, अलग से नाम दिया. और थ्योरम कैसे लिखा, इफ A बार, यानी देयर इज अ पॉइंट A having position vector A bar with reference to some origin O, comma B bar and C bar are the vertices of triangle ABC, and if capital G with G bar as the position vector is the centroid of triangle ABC, then prove that small g bar equal to, formula आता है small g bar equal to A bar plus B bar plus C bar upon 3. आगे स्मॉल g bar कितना आएगा, A bar plus B bar plus C bar upon 3. दिस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड फॉर्मूला. अब इसको प्रूव करेंगे. कैपिटल D बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC. मीडियन चाहिए ना अपने को, तो कैपिटल D कौन रहेगा, मिड पॉइंट ऑफ साइड BC. तो स्मॉल d बार कितना आएगा, B बार प्लस C बार अपॉन 2. बाय विच फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला. नोट नंबर 1. So I repeat, let D be the midpoint of side BC, therefore small d bar equal to B bar plus C bar upon 2, equation number 1. फिर से एक बार, let capital D be the midpoint of side BC, therefore small d bar equal to B bar plus C bar upon 2, equation number 1. Draw median AD. Naturally median AD के ऊपर कौन रहेगा, सेंट्रॉइड रहेगा. Then centroid G divides median AD internally in the ratio. पता है तुमको रेशियो क्या रहता है, 2:1. तो इसके लिए आप कैसे याद रखना, थोड़ा इधर आपको ड्राइंग बताऊंगा तो थोड़ा पीछे ट्रायंगल निकालना. तो नेचुरली ये मीडियन रहेगी, ये ट्रायंगल है. अगर ये मीडियन है और कोई आपको ड्राइंग में इंग्लैंड या अमेरिका पढ़ने गए हायर स्टडीज के लिए और वहाँ के प्रोफेसर ने जी यहाँ निकाला, तो बोला क्या करते हो सर, आप ऐसे पढ़ाते हो, ऐसे कैसे रखते हो. नहीं ऐसा है कुछ तो भी है ना, 1:2:1. वो छोड़ो, इतना बता दूं कि वर्टेक्स के पास मीडियन रहता नहीं है. मीडियन का रहता बहुत नीचे रहता है, ऐसा ऊपर नहीं रहता. यहाँ पे जो रहता है वो अलग चीज़ रहती है, अल्टीट्यूड्स वगैरह रहते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू से रहता, ऑर्थो सेंटर वगैरह, सर्कम सेंटर. तो यहाँ आता है सेंट्रॉइड हरदम. अब आपको 10 साल के बाद भी इंटरव्यू में पूछेंगे मीडियन कैसा रहता, तो आपको ड्राइंग याद आएगा, सेंट्रॉइड जी नीचे रहता है. अब सेंट्रॉइड जी नीचे तो इट विल डिवाइड मीडियन इन द रेशियो, ये डिस्टेंस 2 रहेगा, ये 1 रहेगा नेचुरली. करेक्ट है ना. 1:2 नहीं बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, 2:1, क्योंकि ड्राइंग से अपने को पता चल गया. एग्जैक्टली दैट इज व्हाट वी हैव डन. हियर इज सेंट्रॉइड. देखो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और ये डिस्टेंस बहुत कम है, क्योंकि centroid G divides median AD internally in the ratio 2:1. Very very important formula. Then centroid G divides median AD internally in the ratio 2:1. Therefore by section formula internal division. उसके बाद यहीं से मैं एरो लेके जा सकता था G बार यानी, बट ऐसा करने का नहीं. फिर से नया ड्राइंग निकालो. ये वर्टेक्स A
ये D पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ BC और ये सेंट्रॉइड विच डिवाइड्स मीडियन AD इन द रेशियो 2:1। देखो ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है। देन स्मॉल g बार कितना आएगा, आप एरो लेके जाओ, यहाँ 2 से एरो जाएगा D बार तक, 1 से एरो आएगा A बार तक और नीचे आएगा 2+1। Therefore small g bar equal to 2D bar plus 1A bar divided by 2+1। Perfect tally। Small g bar equal to 2D bar राजस्थान बॉर्डर क्रॉस कर गया अपन, पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान ने भी अपने ऊपर अटैक किया, यानी 1A बार डिवाइडेड बाय 2+1। आई इसको ट्रेन करो, स्मॉल g बार इक्वल टू 2D बार प्लस 1A बार डिवाइडेड बाय 2+1। बट व्हाट इज D बार? D बार कौन है? पोजीशन ऑफ पॉइंट D। पॉइंट D कैसा है? साइड BC का मिड पॉइंट है, तभी तो मीडियन AD हुआ ना, करेक्ट है ना? तो D कौन है? BC का मिड पॉइंट, तो स्मॉल d बार कितना रहेगा? B बार प्लस C बार अपॉन 2 रहेगा। तो स्मॉल d बार इक्वल टू B बार प्लस C बार अपॉन 2, ये वैल्यू डाल दिया, तो 2 इन ब्रैकेट B बार प्लस C बार अपॉन 2 प्लस A बार अपॉन 2+1 है 3, 2 कैंसल, बचा कौन? B बार प्लस C बार प्लस A बार अपॉन 3, करेक्ट है? सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 D बार कौन हो गया? B बार प्लस C बार अपॉन 2 इक्वेशन 1 में देखो, 2 कैंसिल हो गया, B बार प्लस C बार प्लस A बार अपॉन 3 and therefore small g bar equal to A bar plus B bar plus C bar upon 3. This is the centroid formula in vectors. I repeat, this is the centroid formula in vectors.